আহ, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সদর দপ্তরে এই আয়োজিত এই প্রেস কনফারেন্সে আপনাদের সকলে স্বাগত। টুডে I am accompanied by our honorable MP, Mr. Kirti Azad. You all know, the very veteran cricketer, and he is one of the spokesperson nationally. দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আবার এসছেন নির্বাচনের একজন সেই প্রাক্কালে, যেমন উনি ঘন ঘন আসেন পরিযায়ী টুরিস্টের মতো, আজকেও এসছেন। কিন্তু একটা আশ্চর্য সমাপতন হচ্ছে এই, উনি যখন উত্তরবঙ্গে দাঁড়িয়ে বড় বড় ভাবে বলছেন, বিশদে বলছেন যে অরাজকতা, পশ্চিমবঙ্গে জঙ্গলরাজ, পশ্চিমবঙ্গের অমুক, পশ্চিমবঙ্গের তমুক, ঠিক সেই দিন তার এই অপরাটা বন্ধ করো, হ্যাঁ, ঠিক সেই দিন আহ, মালদার একটি ছেলে, উত্তরবঙ্গের একটি ছেলে, মণিপুরে উগ্রপন্থীদের হাতে, একজন মালদার আমাদের জওয়ান, আমাদের দেশের যারা প্রতিরক্ষা করে সেই জওয়ান আজকে মণিপুরের উথরুলে, একজন বিএসএফ 170 ব্যাটালিয়নে কর্মরত একটা মালদার ছেলে, সে আজকে মারা গেল উগ্রপন্থীদের গুলিতে। মণিপুর কোন কোন দেশে? ভারতবর্ষ। তার প্রধানমন্ত্রীকে নরেন্দ্র মোদী, তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অমিত শাহ। মণিপুরে কার রাজত্ব চলছে? কারা শাসন ক্ষমতায়? বিজেপি। তাহলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যেখানে বাস্তুচ্যুত হচ্ছে, গত 860 দিন ধরে মণিপুর জ্বলছে, ধিকি ধিকি করে জ্বলছে, দাবানলের মতো জ্বলছে, যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত হচ্ছে, 300 মানুষের মৃত্যু হয়েছে, আর তিনি সেখানে একদিনের জন্য যাওয়ার সময় পাননি। আমাদের প্রধানমন্ত্রী সঙ্গে যখন বিজেপির মণিপুরের এমএলএরা দেখা করে 5 মিনিট টাইম চেয়েছিলেন, 5 মিনিট, বিজেপির এমএলএরা বলেছিলেন যে মণিপুর জ্বলছে, হে মহামহোপাধ্যায় আপনার সঙ্গে 5 মিনিট সময় চাই, 5 মিনিট টাইম আপনি আমাদের দিন। 5 মিনিটের সময় পাননি উনি। কেননা মণিপুর যেরম ভাবে জ্বলছে, তার থেকে অনেক ভালো হচ্ছে ইসরায়েলে যাওয়া, অনেক ভালো হচ্ছে নামিবিয়ায় যাওয়া, অনেক ভালো হচ্ছে গোটা ইউরোপ ঘুরে বেড়ানো। মণিপুরে গিয়ে কি হবে? আদিবাসী মানুষ জ্বলছে। আর পশ্চিমবঙ্গে ভোটের সময় এসে প্রধানমন্ত্রীও আসছেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও আসছেন, ঘন ঘন আসছেন। এখান থেকে মণিপুর ফ্লাইটে যেতে সময় লাগে মাত্র 1 ঘন্টা, সেখানেই তার যাওয়ার কোনো সময় হলো না। এইটা এর এর এই যে মালদার ছেলেটি যে মারা গেল, এর উত্তর কে দেবে? আমাদের উত্তরবঙ্গের যে ছেলেটি আজকে মারা গেল, তার দায় কার? একবারের জন্যও কি সেই পরিবারের কাছে তিনি দেখা করবেন? উত্তরবঙ্গে এসছেন যখন, ওই মৃত জওয়ানের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে ব্যক্তিগতভাবে দুঃখ প্রকাশ করবেন? রাজনৈতিক ডায়লগবাজি তো এখানে দাঁড়িয়ে অনেক কিছু দেওয়া যায়। बीजेपी के झूठे जुमले सुन सुनकर कान पक चुके हैं। आज से नहीं 12 साल से। और खुद अमित शाह जी ने नरेंद्र मोदी जी के किए गए घोषणाओं को जुमला कहा था। आप लोग खुद मालूम होगा। तो अभी जो मैनिफेस्टो दिया है उसको जुमला ना माने तो और क्या माने। चाहे 2 करोड़ नौकरी की बात हो, 15-15 लाख रुपए हर अकाउंट में जाने की बात हो, चाहे स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट सिटी बनाना था, उसमें कलकत्ता भी था, मेरा दुर्गापुर भी था। अरे और कुछ नहीं, दिल्ली को बना देते, वहां तो आपकी सरकार है। और कुछ नहीं तो अहमदाबाद को बना देते, अगर कलकत्ता नहीं बनाना था आपको तो। लेकिन एक भी नहीं बना। 14,000 करोड़ रुपया खर्च होने के बाद स्मार्ट सिटी योजना बंद। किसान के आय को दुगना करना था, उसके इनकम को डबल करना था 2022 तक, नहीं हुआ। बोला 2047 में गया।
1000 किसान मर गए। ये गंदे काले कानून 3 किसानों के लिए लेकर आए, तीनों को वापस लेना पड़ा। ऐसे अनेकों हैं। तो हम क्यों ना मान लें कि जो इन्होंने मैनिफेस्टो में कहा है, जो 12 साल से आज तक एक भी योजना नहीं पूरा कर पाए या शुरू कर पाए, वह इनकी अभी जो दी गई मैनिफेस्टो है वह एक जुमला है। यह तो सबको मानना पड़ेगा। और आप लोग से अनुरोध करूंगा कि आप भी कृपया इसके बारे में उनसे जरूर पूछिए कि इन जुमलों के बारे में जो तब कहा था अमित शाह जी ने, अब उसके बारे में आपका क्या विचार है। अभी योगी आदित्यनाथ जी की बात हुई। मैं योगी आदित्यनाथ जी के बारे में क्या कहूं, जिन्होंने मठ, जिस मठ के वो अभी अपने आप को बोलते हैं कि मैं उत्तराधिकारी हूं, मैं ही मठ का हूं, वो तो मठ उन्होंने हथिया लिया। आज जब कभी वह गौ माता की पूजा की बात करते हैं, गौ मां की रक्षा की बात करते हैं, तो यह सबसे बड़ा प्रश्न है। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही दोगला चरित्र, दोहरा चरित्र बीजेपी का सामने आ जाता है। जब बीजेपी का उत्तर प्रदेश में बैठे हुए योगी आदित्यनाथ विश्व का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है गौ मांस का, बीफ का। उत्तर प्रदेश ये दिखाते हैं कि मैं बड़ी गौ की सेवा कर रहा हूं, गौ रक्षक हूं। आप मुझे बताइए कि जो आदमी गौ माता जिसको बोलता हो और उसी के राज्य में सबसे ज्यादा गौकशी यानी गाय की हत्या की जा रही है और बीफ बनाया जा रहा हो, और उससे भी बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि बीजेपी इस बीफ कंपनी से जो गौ मांस का एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है, उससे चंदा लेती है इलेक्शन का। इसने गौ मांस के एक्सपोर्टरों से चंदा लिया है, डोनेशन लिया है, और उस डोनेशन को यह चुनाव में इस्तेमाल कर रही है। आप सोचिए, जो आदमी कहता हो कि हम गौ को संभालने वाले हैं, गौ के लिए हम रक्षा करते हैं, वह गौ मांस बेचता है और उससे चंदा लेता है कंपनी से। इससे बड़ी शर्म की बात बीजेपी के लिए और हो सकती है क्या। योगी आदित्यनाथ जी के बारे में भी दादा ने बताया कि कैसे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन केंद्र मंत्री हैं सुकांता मजूमदार, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि स्वामी विवेकानंद कंफ्यूज्ड लेफ्टिस्ट हैं, मतलब मानसिक रूप से ठीक नहीं है। यह स्वामी विवेकानंद जी जो विश्व में जब गए सबसे अंतिम बोलने वाले थे और सबसे अधिक जिनको तालियां मिली थी, जिन्होंने कहा था, शुरू किया था भाषण, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यह लोग इस तरीके के लोग हैं। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ये अयोध्या में राम मंदिर की बात कर रहे थे, हम भी राम की पूजा करते हैं, हम तो सीता मां के जन्म स्थान मिथिला के रहने वाले हैं, भगवान राम के ससुराल वाले हैं, क्योंकि भगवान राम का ससुराल मिथिला में, वहीं के हम रहने वाले हैं। इन्होंने राम मंदिर का एक योजना बनाया, राम मंदिर को कहा ले लिया, राम मंदिर न्यास की तरफ से इन्होंने ले लिया, लेने के बाद इसको अपना पॉलिटिकल मुद्दा बना लिया, मंदिर बन गया, कहा हमारा लक्ष्य पूरा हो गया। आपको मालूम है कि अयोध्या जहां भगवान श्री राम का मंदिर है, वह अयोध्या की सीट और उसके आसपास की 9 डिस्ट्रिक्ट सीटें बीजेपी हार गई। अयोध्या जैसी जगह पे जो ये राम मंदिर की बात करते हैं, ये वो सीट हार गई। उसके साथ आसपास की 9 डिस्ट्रिक्ट्स हार गए, 9 जिले, 9 सीट हार गए। यह वह बीजेपी है। 10 साल पहले इसकी लोकसभा में 71 सीटें थी, 71। आज से 5 साल पहले इसकी 62 लोकसभा की सीट थी। यह 71 से हुआ 71, से हुआ 62, और आज यह उत्तर प्रदेश में जो बड़ा अपने आप को कहते हैं कि हमारे यहां कोई राइट्स नहीं था, कुछ नहीं होता, इनके 80 में से केवल रह गई है 33 सीट, 33। 71 से 33 का सफर इन 10 सालों में जब से योगी आदित्यनाथ रहे, इनका ये रहा है। और कहते हैं कि मेरे यहां राज्य में कोई राइट्स नहीं होते, कोई कर्फ्यू नहीं होते। अगर नहीं होते तो एनसीआरबी के सितंबर का 2025 का आंकड़ा, यह केंद्र सरकार का है, मेरा नहीं है। यदि है राम राज्य की उत्तर प्रदेश में बात करते हैं, तो यह बताएं, जो एनसीआरबी का केंद्र सरकार का डाटा है, वह यह कहती है कि उत्तर प्रदेश
महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार में 1 नंबर पे है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर राजस्थान आता है। 66,381 केस, 66,381 केसेस हैं। उसी प्रकार से रेप में राजस्थान पहला और उत्तर प्रदेश दूसरा है। मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। डाउरी, जो लोग दहेज लेते हैं, डाउरी लेते हैं, उसमें उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर है। ये सारे आंकड़े जब पिछली बार मैं आपके बीच में आया था तो मैंने आपके समक्ष रखी थी ये बात, और उन सभी आंकड़ों को एक बार फिर हमारी तरफ से भी आपको दे दिया जाएगा। एसआईआर के विषय में इन्होंने बता दिया, डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट, ये कहा था अमित शाह ने। 90 लाख लोग इन्होंने एसआईआर में, जिसमें 60 लाख हिंदू हैं और 30 लाख मुसलमान हैं, क्या इन सबों को रोहिंग्या बनाकर हिंदुस्तान से बाहर करेंगे? मैं जहां जहां क्षेत्र में प्रचार पे जा रहा हूं, कहीं पर ऐसे जगह नहीं है जहां पर 30,000, 40,000 उसमें बंगाली हैं, हिंदी बोलने वाले हैं, मैथिली बोलने वाले हैं, भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं, जिनके नाम काट दिए गए हैं, जो यहां आज से नहीं रह रहे, जिनका परिवार 30-30, 40-40, 50-50, 60-60 साल से यहां रह रहा है। आज यह परिस्थिति इन लोगों ने बनाई हुई है। तो योगी आदित्यनाथ जब कभी आते हैं, उनसे प्रश्न जरूर पूछिएगा कि तुम गौ मां के रक्षक हो, गौ मां की सेवा करते हो, लेकिन गौ मांस के निर्यात में, एक्सपोर्ट ऑफ बीफ में तुम यूपी नंबर 1 कैसे है? कैसे सनातनी हो तुम? उनके चंदे से तुम यहां पर हेलीकॉप्टर में घूमते हो। जो बीफ के विक्रेता हैं, उनसे तुमने चंदा लेके उनके हेलीकॉप्टर पे घूम रहे हो। मतलब गौ मांस की जिन लोगों ने एक्सपोर्ट किया, उनसे चंदा लिया और उनके पैसे पर तुम यहां घूमते हो। कैसे सनातनी हो तुम? यह तो योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहिए ना। और आंकड़े भी पूछिए, कहिए आंकड़े तो हमारे नहीं है, यह आंकड़े तो केंद्र सरकार के, एनसीआरबी के सितंबर 2025 के हैं। और एक मजेदार वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। कहां है भारतेंदु? जरा उसको चलाइए। एक वीडियो आपको दिखाएंगे, बड़ा मजेदार है। हाँ। 8 मार्च तक दिल्ली की बहनों के खाते में 2,500 रुपया पहुंचना शुरू हो जाएगा। দিল্লিতে নরেন্দ্র মোদী নির্বাচনের আগে মহিলাদের 2,500 টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আজ 14 মাস কেটে গেছে, অথচ তাদের অ্যাকাউন্টে 25 পয়সাও ঢোকেনি। पैसे वैसे बताए गए थे कि महिलाओं को 2100 रुपए मतलब हर महीने मिलेगा, देंगे, सुविधा उविधा करवाएंगे, कुछ भी नहीं। 2500 मिल जाएगा और गैस चूल्हा मिल जाएगा फ्री में। ये हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा अभी तक। মহারাষ্ট্রেও নির্বাচনের পর 90 লক্ষ মহিলাকে লাড়কি বাহিন প্রকল্প থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে ডিজিটাল ভেরিফিকেশনের অজুহাত দিয়ে। सरकार ने कठोर राज्यव्यापी डिजिटल ऑडिट के बाद मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना लाभार्थी सूची से लगभग 90 लाख महिलाओं को हटा दिया है। বিহারে ভোটের আগে মহিলাদের 10,000 টাকা দেওয়ার পর এখন বাড়ি বাড়ি নোটিশ পাঠিয়ে টাকা ফেরত চাইছে বিজেপি সরকার। बिहार विधानसभा चुनाव में जिन लोगों के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले गए थे, सरकार ने 10-10 हजार रुपए भेजे थे, अब उनसे वो 10-10 हजार रुपए वापस मांगे जा रहे हैं। वोट दिलिए, बोलिए। 10,000 रुपया दिया है तो वोट दिया है। तो पैसा कौन बात की? नहीं देगा, नहीं देगा। वोट दीजिए हमारा, वोट वापस करो। हाँ, हमें वोट वापस करिए, पैसा देंगे। কয়েকদিন আগে অমিত শাহ বাংলায় এসে নির্বাচনী ইস্তাহারে বাংলার মহিলাদের 3,000 টাকা দেওয়ার ঘোষণা করেছেন। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर महीने 3,000 रुपया हर माता के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। তাহলে বুঝতে পারছেন তো, এইভাবেই বিজেপি আপনাদের টাকা দেওয়ার টোপ দেবে, তারপর ভোট নিয়ে বিভিন্ন অজুহাত দিয়ে টাকা ফেরত চাইবে, নোটিশ পাঠাবে, হুমকি দেবে, বুলডোজার চালাবে। একটা ভোটও বিজেপিকে নয়। लाइट प्लीज, अब लाइट। अब एक बात मुझे बताइए, हम शुरू में ही कहे थे कि जो 2 करोड़ रुपया नहीं दिया, तो 15-15 लाख रुपया नहीं दिया, जो किसान का इनकम डबल नहीं किया, जो स्मार्ट सिटी नहीं बनाया, जो पेट्रोल डीजल का दाम नहीं कम किया, जो काला धन वापस लेकर नहीं आया, 12 साल से जुमला देता रहा, वो 3,000 रुपए बंगाल में देगा।
और अभी तो सबसे ताजा उदाहरण तो आपके सामने है। 2,500 रुपया जो प्रत्येक महिला के खाते में जाना था मार्च 8, 2025 को, हमने सोचा शायद सुनने में गलती हो गया, 2026 होगा, तो मार्च तो खत्म हो गया, अप्रैल आ गया। अब मुझे आप ये बताइए, जैसे 2 करोड़ रुपया वैसे ये 3,000 रुपया है कि नहीं है? जिस प्रकार से दिल्ली में देना था 2,500 रुपया, वो यहां पर जो घोषणा कर रहे हैं वो जुमला है या नहीं है? और देखिए, हम तो 3 बार एमपी बिहार दरभंगा से रहे, वहां की परिस्थिति तो हम जानते हैं। जिस हॉस्पिटल को, इंडस्ट्री को बढ़ाने की बात ये करते हैं, एक भी इंडस्ट्री शुरू नहीं हुआ। 20 साल से ये फेल्ड इंजन की सरकार है, जिसको ये डबल इंजन बोलते हैं। एक इंडस्ट्री खड़ी नहीं हुई वहां। हॉस्पिटल एम्स 2015 में हमने दरभंगा में पास कराया, वहां पर एक गेट बना है सिर्फ, बाकी फांका है। वो एम्स का गेट है। 15 करोड़ बोला, 15 लाख में हम बनवा दें। बिहार में महिलाओं, क्या कहा उन्होंने, मैं आपको आसान कर देता हूं। उनके पास, सबके पास में बीडीओ गया, बीडीओ इन महिलाओं के पास, जितनी महिलाएं थीं, जिनके इलेक्शन से 10-10 हजार रुपया पहले ट्रांसफर किया गया था जिनके बैंक अकाउंट में, उस बैंक अकाउंट से पैसा वापस लेने के लिए बीडीओ गया, बीडीओ को भेजा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बात समझिए, ऑफिसर गया कि पैसा वापस लाओ। तो महिला लोग जूता चप्पल लेकर के, चट्टी ले लेके मारा, बोला तुम हमसे वोट ले लिया और 10,000 रुपए वापस मांगता है। हम 10,000 रुपया खरीद, उसको मवेशी में कर दिया, यानी हम भैंस खरीद दिया, हम गाय खरीद दिया, हम सामान बच्चा के लिए खरीद लिया, हम स्कूल का बच्चा का किताब खरीद लिया, हम अलग अलग चीज ले लिया, और तुम लोग हमसे पैसा वापस मांगने आए हो। पहले वोट लाओ वापस, उसके बाद पैसा लो। मतलब वहां का लोग भी समझ गया कि वोट लेने के लिए ये लोग पैसा दिया था, और आज महिलाओं के साथ इस प्रकार का वह हरकत कर रहा है। यह है असलियत। जुमले जो अमित शाह ने कहे, जो प्रधानमंत्री ने घोषणाएं की थी, उसको अमित शाह ने जुमला कहा था। आज वही घोषणा बीजेपी यहां कर रही है। दिल्ली को पूरा नहीं किया, किसी काम को पूरा किया नहीं, और आ गए हैं यहां वोट मांगने के लिए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, ये कुछ भी प्रयास कर लें, बंगाल के लोगों के दिल से, जो बंगाल में जो भी रहता हो, हिंदी भाषी रहता हो, बंगाली रहता हो, हिंदुस्तान के किसी कोने से रहता हो, सबके हृदय में, सबके दिल में ममता बंदोपाध्याय बसती है, रहती है। इसलिए बीजेपी जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है, वो देखना बंद करे। आपको मालूम है कि बिहार में जीतने के बाद, एक पॉइंट हम वो वीडियो भी अगली बार देंगे, इन्होंने कहा था बिहार में चुनाव से पहले कि जिसका जिसका जहां पर, ये नहीं कि जगह लेकर, जिसका जिसका जहां पर झुग्गी झोपड़ी बना हुआ है, कच्चा मकान बना हुआ है, उस कच्चा मकान को हम वहीं पर पक्का करेंगे। हॉकर लोग जो ठेला गाड़ी लेके चलता है, उसको बोला जहां तुम्हारा ठेला गाड़ी है वहीं पर तुमको पक्का दुकान देंगे। देखिए कितना झूठ बोलता है ये बीजेपी वाला। हम रहे इन लोग के साथ, जानते हैं कैसा झूठ बोलता है ये लोग। और 10 दिन के बाद बुलडोजर चला के उन लोग का कच्चा पक्का मकान तो छोड़िए, कच्चा मकान जो है भंग चूर कर दिया। सब हॉकर सबका था, उसका हॉकर को यह भी नहीं कहा कि तुम अपना रेड़ा पटरी ले जाओ, अपना सामान ले जाओ, अपना घोड़ा गाड़ी ले जाओ, ठेला गाड़ी ले जाओ, नहीं, उसको भी तोड़ के खत्म किया। सोचिए 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपए लगाया होगा बेचारा वो गरीब आदमी, उसको भी फोड़ के खत्म किया। ये है बीजेपी। और एक तरफ है ममता बंदोपाध्याय, बच्चा के जन्म लेने से लेके इंसान के शेष होने तक योजना देती है, चुनाव के पहले नहीं देती है। ये लक्ष्मी भंडार आज का नहीं दिया हुआ है, बहुत पुराना है। रूपोश्री, कन्याश्री, शमश्री, स्वास्थ्य साथी, आप कार्यक्रम देखिए, षष्ठ साथी, जिसको आप कार्यक्रम, एक कार्यक्रम कितना गिनेंगे हम? आओ वह कार्यक्रम देती है, लेकिन ये लोग केवल भाषण देता है बीजेपी, योजना के भाषण देगा, काम नहीं करेगा। ममता बंदोपाध्याय काम करके दिखाती है। तो इसलिए हम आपके माध्यम से लोगों को बोलना चाहते हैं कि इनके झांसे में मत आना। इनसे बड़ा झांसेबाज और कोई है नहीं। बीजेपी मतलब क्या होता है? ये बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी मतलब होता है बी से भारतीय, जे से झूठा और पी से पार्टी। बीजेपी, भारतीय झूठा पार्टी। इतने ही नाकाम है ये लोग,
इनको सरकार चलाना नहीं आता, ये राज्य नहीं चला सकते। अष्टलक्ष्मी बोलते हैं, वहां जो परिस्थिति बनी है, वहां पे हमारे बहन बेटियों को नंगा घुमाया गया। 860 दिन के बाद वो भी 2 मिनट के लिए प्रधानमंत्री गए, लोगों के साथ बात नहीं की। आज जो परिस्थिति आज भी मणिपुर में कोई अच्छी नहीं है। इतने 860 दिन के बाद गए थे प्रधानमंत्री, लेकिन उसके बाद आज भी परिस्थिति वही है। लोगों को वो जगह नहीं मिल पाई जहां वो रह सकते हैं, और वह सीधा गृह मंत्रालय उसको देखता है। जितनी भी हमारी अष्टलक्ष्मी, जिसको अष्टलक्ष्मी का नाम इन्होंने दिया है, लेकिन वहां पर हमारी बेटी जो लक्ष्मी है, उनको नहीं बचा पा रहे हैं ये लोग। क्यों नहीं किया अभी तक? ये तो जवाब बीजेपी से पूछना चाहिए ना, कि वो जवाब दें हमें, कि जिससे मणिपुर एक राज्य है, देश का महत्वपूर्ण राज्य है, नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, आपसे संभल नहीं रहा, आपसे यूपी नहीं संभलता, जहां पर अत्याचार 1 नंबर पर है, महिलाओं के खिलाफ में मर्डर है, रेप है, डकैती है, सब तो यूपी में हो रहा है। तो आप बीजेपी से क्या अपेक्षा रखते हैं? यहां पर आकर बोलते हैं कि हम बहुत बढ़िया करेंगे। कुछ नहीं कर सकते, जुमले ही जुमले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। হ্যাঁ কি বলছিলে? 1 মিনিট। হ্যাঁ ডুয়ার্সের বিজেপির প্রার্থী নরেশ রায় প্রকাশ্যে গান্ধীজিকে দেশদ্রোহী বলে কটাক্ষ করেছেন এবং তিনি বলছেন ক্ষুদিরাম 17 বছরের আত্মবলিদান দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু দেশ সম্পর্কে কিছু জানতেন না। अरे কে বলেছেন এটা? ডুয়ার্সের বিজেপি প্রার্থী, মানে ডুয়ার্স মানে ধূপগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিজেপি প্রার্থী বলেছে। হ্যাঁ কি বলেছেন? গান্ধী গান্ধী হচ্ছে বেসিক্যালি দেশদ্রোহী, হ্যাঁ আর ক্ষুদিরাম আত্মত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু দেশ সম্বন্ধে কিছু জানতেন না। হ্যাঁ তার উনি যে নাথুরাম গডসের উত্তরসূরি ডুয়ার্সে দাঁড়িয়েছেন, সেটাই বোঝা যাচ্ছে। ধূপগুড়িতে নাথুরাম গডসের উত্তরসূরিতে दाঁড়াবেন। बीजेपी तो चेला है नाथूराम का। ये तो नाथुराम का चेला उधर आ गया हाँ। बीजेपी के झंडा लेके। आरएसएस और बीजेपी तो नाथूराम का चेला আর আরেকটা সেকেন্ডটা কি বলেছেন? ক্ষুদিরাম 17 বছর বয়সে, ক্ষুদিরাম 12 বছর বয়স থেকে ম্যানিফেস্টো দিত, ইস্তেহার দিত। হ্যাঁ ক্ষুদিরাম যখন যায় মুজফ্ফরপুরে, ক্ষুদিরাম হচ্ছে ফার্স্ট ছেলে যে বলে আমি যাব। ক্ষুদিরাম মনে রাখতে হবে যুগান্তর সমিতির ছেলে, এবং মেদিনীপুরে সত্যেন বোসের আন্ডারে কাজ করত। কেউ যেতে রাজি হয়নি, ক্ষুদিরাম বলল আমি যাব। প্রফুল্ল চাকিকে আনা হয় অন্য জায়গা থেকে। মনে রাখতে হবে ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকি যখন যাচ্ছে মুজফ্ফরপুরে, একে অন্যের নাম জানে না, দুজনের অন্য নামে যাচ্ছে। তাহলে 17 বছরের একটা ছেলে নিজের প্রাণ ঝুঁকি নিয়ে জানে যে সে ফিরতেও পারে, নাও ফিরতে পারে, সে ওখানে যাচ্ছে, সে দেশের জানে, কিছু বুঝতো না। আর এই ধূপগুড়ির, হ্যাঁ, ধূপ में निकला ना करो कौन, এই যে রানী নাকি চোর, 40 রানী কার और চোর, ও জানে দেশের কথা। দেশের কথা জানে হচ্ছে ক্ষুদিরাম বসু। ক্ষুদিরাম বসুকে আপনি অপমান করছেন বাংলায় এসে। শুনুন শুনুন, হ্যাঁ শুনুন, 1 নম্বর হচ্ছে উনি আজকে উত্তরবঙ্গে দাঁড়িয়ে গোর্খা ভাইদের সম্বোধন করে কথা বললেন। উনি পরিষ্কার করে বললেন না কেন যে গত 12 বছর ধরে গোর্খাল্যান্ড নামক যে মূলটা ঝুলিয়ে রেখেছেন, সেটা নিয়ে বিজেপির বক্তব্য কি, ওনাদের বক্তব্য কি? গোর্খাল্যান্ড নিয়ে বিজেপি যে উত্তরবঙ্গ ভাগ করতে চায়, এটা তো 15 বছর ধরে, 12 বছর ধরে বলছে। আজকে স্পষ্টপুষ্টিভাবে প্রধানমন্ত্রী ওখানে কথা বললেন না কেন? দ্বিতীয়ত, উত্তরবঙ্গ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যা করেছেন সেটা একটা ইতিহাস হয়ে গেছে। উত্তরবঙ্গে শুধু কতবার গেছেন মুখ্যমন্ত্রী, সেটা দুর্যোগে হোক, কাজে হোক, অকাজে হোক, এমনকি পর্যটনের কাজে হোক, এতবার কোনো মুখ্যমন্ত্রী স্বাধীনতার পর উত্তরবঙ্গে যাননি। উত্তরবঙ্গ দপ্তর আলাদা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের যে প্রশস্ত করিডর, তা আমাদের আমলে হয়েছে। চা সুন্দরী নামক যে প্রকল্প যে নেওয়া হয়েছে, এবং ওখানে প্রত্যেকটি শ্রমিক যে এখন ন্যায্য মজুরি পায়, মাথার উপর পাকা ছাদ পায়, সেটা মমতা ব্যানার্জির জন্য। উত্তরবঙ্গের পর্যটন থেকে শুরু করে প্রতিটি জায়গা যেভাবে যত্ন নেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, কিছু বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তি আছে। উত্তরবঙ্গে রাজবংশী একাডেমি কে করেছে?
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কামতাপুরি একাডেমি কে করেছে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তা এই উত্তরবঙ্গের আপনারা বলুন না, আপনারা একটা কাজ করেছেন এই তো এতদিন ধরে, 14 সাল থেকে আপনাদের এমপি ওখানে আছে, 14 কি 9 থেকে আছে বোধহয়, নাকি না 14 থেকে আছে, আপনাদের এমপি ওখানে আছে। কি করেছেন উত্তরবঙ্গে আপনারা? উত্তরবঙ্গের জন্য আপনারা আলাদা কি দরদ দেখিয়েছেন? এখানে এসে উত্তরবঙ্গ নিয়ে কথা বলছেন। আমরা তো আমাদের এই প্রেস কনফারেন্সের শুরুতে তো বললাম, আজকে তো উত্তরবঙ্গের ছেলে মারা গেছে, মালদার ছেলে মারা গেছে। একটা দুঃখ প্রকাশ করতে দেখেছেন? মণিপুরে যে মারা গেল আমাদের বাংলার এই মালদার ছেলেটা, জওয়ান। কোন শ্রদ্ধাবোধ আছে উত্তরবঙ্গের ওপর? নেই। এই প্রসঙ্গে জাস্ট একটা অ্যাড করে দিচ্ছি, দেশে একটা টুকরে টুকরে গ্যাং আছে, দেশে একটা টুকরে টুকরে গ্যাং আছে। এই গ্যাং শিলিগুড়ি করিডোরকে কাটার হুমকি দিয়েছিল উত্তর পূর্বকে আলাদা করবার জন্য। তেমন লোকজন কি তৃণমূল রাস্তা থেকে সংসদ পর্যন্ত সমর্থন করে? এটাই হচ্ছে তৃণমূলের আসল চেহারা। দেখুন, বিজেপির বিরোধী মানেই হচ্ছে তারা টুকরে টুকরে গ্যাং। বিজেপি যে বিরোধিতা করবে তারা যদি সিভিল সোসাইটির লোক হয় তারা টুকরে টুকরে গ্যাং, তারা যদি জেএনইউ এর ছাত্র হয় তারা টুকরে টুকরে গ্যাং, তারা যদি ক্রিকেট খেলার সময় যদি হইচই করে তারা টুকরে টুকরে গ্যাং, তারা যদি বিজেপি বিরুদ্ধের কোনো লেখালেখি করে বা বক্তব্য পেশ করে তারা টুকরে টুকরে গ্যাং। ইউটিউবাররা টুকরে টুকরে গ্যাং। যে সাংবাদিকরা গদি মিডিয়া না হয়ে তাদের স্বাধীন ভাবনার কথা বলে তারা টুকরে টুকরে গ্যাং। তা বিজেপি বিরোধী যে কেউ টুকরে টুকরে গ্যাং। কিন্তু এরা যদি টুকরে টুকরে গ্যাং হয়ে থাকে, বিজেপি যে এতদিনে একটা মাফিয়া গ্যাং, এটা ভারতবর্ষের মানুষ বুঝতে পারছে। আজকেই চন্দ্রবাবু যেটা বললেন যে সংবিধানটাকেই পাল্টে দিতে চায়, ধর্ম নিয়ে, মন্দির মসজিদ নিয়ে খালি রাজনীতি করে। একটা পশ্চিমবঙ্গে একজন মাইনরিটি ক্যান্ডিডেট দেয়নি। আপনারা ভাবতে পারছেন? যে মাদ্রাসার জন্য 6000 কোটি টাকার বাজেট করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার, উত্তরবঙ্গের জন্য পর্যাপ্ত বাজেট। উত্তরবঙ্গের জন্য এখন অব্দি স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গে উত্তরবঙ্গের জন্য বাজেটে যদি আমরা যদি ক হাজার কোটি টাকা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের অর্থ দপ্তর থেকে বরাদ্দ করেছেন, সেই হিসেবটা আমরা শ্বেতপত্র প্রকাশ করব। আপনারা শ্বেতপত্র প্রকাশ করুন উত্তরবঙ্গের জন্য আপনারা কেন্দ্রীয় সরকার কত টাকা খরচা করেছেন। अरे टुकड़े टुकड़े बैंक पार्टी तो बीजेपी है, विभाजन जनता पार्टी है। जी आप पूछ रहे थे कुछ? आज मोदी जी कह रहे हैं कि पिछले 15 साल में तृणमूल कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ घोटाला किया है बंगाल में, कोई अच्छा काम किया नहीं। तो जो नया वोटर्स है, जो युवा वोटर्स है, उन लोगों को सोच समझ के वोट डालना चाहिए इस बार। ये मेरा पहला सवाल। और दूसरा सवाल, तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स को एनआईए हो या ऐसा कोई सेंट्रल एजेंसी चुनाव के पहले बुलाता है, लेकिन यही एनआईए मणिपुर में नहीं दिखता है, क्यों? सबसे पहला बात तो इनसे ये पूछिए कि आपका कमल वॉशिंग पाउडर जो है उस मशीन से लोग कैसे निकल जाता है। हेमंत बिस्वा शर्मा, जिसके बारे में 2014 में अमित शाह ने जाकर आसाम में कहा था कि हमारी सेंटर में सरकार बनेगी, उस समय 2014 में सेंटर में सरकार बनेगी तो हेमंत बिस्वा शर्मा को हम जेल भेजेंगे। और एक बार जब आप लोगों में से ही, पत्रकार में से ही पूछा कि भाई आपने जेल भेजने कहा था, क्या हुआ, तो बोला ये प्रश्न मत पूछो, ये कोई बात हो गया, ये प्रश्न नहीं पूछने देंगे। इनके वही अजीत पवार नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, 70,000 करोड़ रुपया का आरोप उसके ऊपर लगाया था और 3 दिन के बाद डिप्टी सीएम बन गया, और वो भी किसका? फाइनेंस का। फाइनेंस जिसके ऊपर लगा था। इनसे क्या बात करते हो? वही प्रफुल्ल पटेल, वही नारायण राणे, वही आप उठा लीजिए यूपी में जितने लीडर है सब इनके हैं, इनसे पूछो ना। ওরা বলেছিল যে আমরা কংগ্রেস মুক্ত ভারত করব, ওরা এখন কংগ্রেস যুক্ত বিজেপি করছে। যত কংগ্রেসের লোককে আরোপ করছে, আরোপ দিয়ে নিজেদের দলে টেনে নিচ্ছে। एनआईए का बात करता है, ये लोग तो ईडी, सीबीआई, आईटी, एनआईए जिसके ऊपर करा लेता है, क्योंकि ये सब एजेंसी, जैसे ज्ञानेश कुमार है, वैनिश कुमार, तो ये बीजेपी कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं है। और लड़ाई हमारा बीजेपी से नहीं है, क्योंकि बीजेपी का तो कोई कार्यकर्ता, कर्मी कोई जमीन पर है ही नहीं। हमारा लड़ाई तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हो रहा है। बीजेपी कहीं आसपास है नहीं, 50 सीट भी नहीं आने वाला उसको इस बार।
ठीक है, थैंक यू थैंक यू टू ऑल।